When communicating with others, we often focus on what we should say. However, effective communication is less about talking and more about listening. Listening well means not just understanding the words or the information being communicated, but also understanding the emotions the communicator is trying to convey. To understand the importance of how to become an effective communicator, Vishwa came in joint collaboration with the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, organized a one-day event under Project LEAD, Leadership through Education, Action and Determination. This is the 9th session in the LEAD training series. Let us hear further in the words of our expert, Mr. Surinder Narayan Ahuja. A very good evening to all who are present here and who are listening to us. And I would like to first welcome our esteemed faculty, Mr. Surinder Narayan Ahuja, sir. A very warm welcome to you, sir. Thank you so much for giving your valuable time. Then I want to welcome our principal ma'am, Professor Mamta Sharma ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving this opportunity and your valuable presence and your dedication towards work and all your enthusiasm is boosting us to conduct these kind of sessions. And in this series, I want to welcome Shri Uday Shankar Singh ji, our Chief Controller from Vishwa Yuva Kendra. We welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. Manju Goyal, ma'am. Thank you so much, ma'am. Always showing your, confidence in me. Thank you, ma'am. And thank you, Manisha, ma'am, for being there. I welcome you on behalf of all the team members of Vishwa Yuva Kendra and Aditi Mahavidyalaya, that is team lead. And I just want to welcome all the dignitaries, all the participants, because not only students, there are so many people who are very learned and who have joined us for this session. Thank you so very much to all the representatives of NGOs and all the sectors. A very warm welcome to all the dignitaries and NGO representatives. Then I want to welcome all the students who have joined us to learn, because without your enthusiasm, your questioning, this session is not that much fruitful. Thank you so much. And we welcome you on behalf of all the team members of Project LEAD in session 9. So I just want to convey my welcome to all who are present here and who are listening us through various platforms. And now we are today in the session 9, that is how to become an effective communicator. With this, I'm going to do a quick recap of the previous session, which was taken by Surinder Ahuja sir. And welcome address was done by Ms. Apurva Gautam. Recap of the session of the previous session was done by Mr. Ajit Rai. Question answers were taken by Mr. Rakesh Chaudhary, and vote of thanks was proposed by Ms. Manisha Pai. The previous session has actually focused on 3 major components, that is on speaking, listening, and barriers. So very, effectively sir conveyed that don't compare yourself with anyone in this world. And if you compare, you are insulting yourself. We all have certain our qualities which are imbibed in our personality, and we should respect that. No one will manufacture a lock without a key, and he has focused that similarly God has given a solution to each and every problem. I always believe that when you smile at it, it will smile back. And sir has also focused that day on the same point, that whenever you are facing any kind of a problem, just take it with a smile and it will become a very light thing to do in life. Speaking and listening are made for each other. Speaking is not what we say, but how we say it matters. It has a lot of content in it. Communication is not only, saying what we are saying, but it is basically the knowledge we have about a subject, the command on the language. And this knowledge of subject is, it continues throughout our life cycle.
because knowledge is not something that we say that आज हमें सब कुछ आ गया है और अब हमारे पास सीखने को कुछ नहीं बचा है, और सुरेंद्र सर के हर सेशन में ये सीखने को मिलता है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें और समझें। रीजनल लैंग्वेज, हम जिस भी रीजन से आते हैं हमें वो सीखना चाहिए, बिकॉज वी फील कनेक्टेड विद ईच अदर, वी फील कनेक्टेड विद आवर रूट्स। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। वी कैन नॉट सर्वाइव without communication, because we are dependent on each other, and to convey our needs we need to interact with each other. We cannot live in isolation. Consequences of half-baked knowledge and languages were also discussed in this session through various illustrations. सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें जॉब पर्सपेक्टिव से, लेटर पर्सपेक्टिव से, हाउ टू कम्युनिकेट विद सीनियर्स, राइटिंग और वर्बल दोनों कम्युनिकेशन के थ्रू हमें समझाया कि लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से उसका मीनिंग भी बदल जाता है। लर्निंग कम्युनिकेशन, again sir focused that it goes through life, throughout life cycle. स्पीकिंग स्किल्स की जब बात की तो सर ने कहा कि प्राइमरी मीन्स है जब हम किसी से अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस को जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स हो। एंड स्पीकिंग स्किल्स जो होते हैं ये हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में हमारी मदद करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स पर बात करते हुए उन्होंने फोकस किया इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पर, टाइम फ्रेम का हमें ध्यान रखना होगा, एंड जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो पर्सनलाइज्ड जो है होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंटेंट क्या होगा, हमारा वॉइस क्या होगा, वॉइस का टोन क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होंगे, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, बिकॉज ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इमीडिएट फीडबैक जो है हमें मिल जाता है, अगर हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है या हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो हमारा जो हमें जो सुन रहे होते हैं, लिसनर्स होते हैं, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं और हमें समझ आ जाता है कि हम किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो है स्पीकिंग स्किल्स को लेकर यही है कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रहे, जहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम जो कह रहे हैं वो प्रॉपरली रिसीव हो और उसे समझा जा सके और उसे एक्सेप्ट किया जा सके। बहुत सारी जगह पर हमने ऐसा देखा है, कभी हम कोई जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बट सामने वाला उसे किस तरह से रिसीव कर रहा है ये मैटर करता है कि वो उसे रिसीव करके और उसे एक्सेप्ट भी करे। कम्युनिकेशन प्रोसेस को सर ने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस के थ्रू बताया कि किस तरह से स्पीकर जो है उसे ट्रांसमिट करता है, लिसनर रिसीव करता है और फाइनली इट रिजल्ट्स इन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, बैरियर्स, इन सब पर बात की। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत ही बेहतर तरीके से सर ने हमें समझाया कि क्या डिफरेंस है। हियरिंग जो है वो सिंपली सुनना है, कोई भी एक शोर जो बाहर से आ रहा है, हमारे आसपास से आ रहा है, जिसको हम कॉन्शियसली नहीं सुनते हैं, वो हियरिंग है। इसमें फिजिकल प्रोसेस भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट जो लिसनिंग है वो एक्टिव लिसनिंग है और कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। लिसनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सर ने बताया कि हमारे ब्रेन से इट गोज थ्रू 4 स्टेप्स। 1 इज हेयरिंग, 2nd इज इंटरप्रेटिंग, 3rd इज इवैल्यूएटिंग एंड 4th इज रिस्पॉन्डिंग। और इसके साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सर ने हमारे साथ कुछ शेयर किए। प्रॉपर लिसनिंग को फोकस किया कि बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर लिसनिंग करें। वी शुड ऑलवेज कैरी अ स्क्रिबलिंग पैड एंड पेन, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब हम अपने वार्तालाप को लिख लेते हैं और स्पेशली जब हम वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारे सीनियर्स की कही हुई बातों को लिख लेते हैं या क्लास में अपने टीचर के कहे हुए बातों को लिख लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाते हैं और हम उन पर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। एग्जामिनेशंस के टाइम पर हमको बहुत ध्यान देना है कि हमको जो भी आंसर्स लिखने हैं उनको हम ध्यान से, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर ही आगे बढ़े। सर ने लाइफ में टास्क जो होते हैं, वेरियस टास्क, उनकी भी लिस्टिंग करने पर हमें जो है थोड़ा स्ट्रेस किया। He has also cited various examples of ineffective listening and poor listening.
And he also talked about benefits of listening. It prevents the mistakes. It helps in avoiding the repetitions, time loss को खत्म कर देता है अगर हम अच्छी तरह से सुनते हैं किसी को. It helps us in understanding needs and wants of our customers or our friends or our family members. It helps us in building self esteem, क्योंकि जब हम एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा सेल्फ एस्टीम को भी कहीं ना कहीं स्मूदन करता है, क्योंकि हम अच्छा काम भी फिर कर पाते हैं. एक और बहुत बेहतर तरीके से सर ने हमें समझाया कि ये बहुत जरूरी है लाइफ में दूसरों को सुनना, क्योंकि there are the people who want to ventilate their feelings and never give them advice, never judge them, just listen them. If they are in problem, they have their solution with them. We just need to be a good listener to them. कम्युनिकेशन बैरियर्स को लेकर सर ने बहुत रैपिडली हमें बताया था, लेकिन बहुत क्लियरली हमें बताया कि जार्गन्स को हमें यूज नहीं करना है. ऐसे शब्द जो इजीली सबको समझ ना आते हो उनका यूज थोड़ा कम ही करना है. लैक ऑफ अटेंशन, डिफरेंसेस इन परसेप्शन, फिजिकल डिसेबिलिटी, लैंग्वेज डिफरेंसेस, सिलेक्टिव हियरिंग, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती है और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इसे अवॉइड करें. How to become an effective communicator. Now, as you all know, communication has three aspects. One, which we have discussed in detail, verbal. We have also discussed non-verbal, and something which needs to be discussed is written communication. So I'll share with you few things on written communication. Particularly in written communication, I'll be touching three parameters. Well, first one will surprise you, but still I'm saying how to write good English. In that, I will share one professional skill with you, which I'm sure all of you will be convinced with that new skill. And if you start implementing, that skill can bring a very big change in your professional life as well as in your personal life. That skill I will do when I'm talking about how to write good English. Then second thing I'll be doing in written communication is how to write a letter. अब आप कहोगे हमारी कोई उम्र है सीखने की कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है, बट मैं आपको प्रॉमिस देता हूं जब हम करेंगे आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी. और तीसरा एस्पेक्ट आई विल डिस्कस विद यू इज हाउ टू राइट ए बिजनेस लेटर और हाउ टू राइट ए प्रोफेशनल लेटर. इन तीनों को करने के पश्चात फिर हम यात्रा शुरू करेंगे हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल communicator. We'll try to recall what we have done already in the previous 3 sessions, and we will add certain new dimensions to that. But once again, I want to request all the participants. Today, I'm sure all of you are ready with your scribbling pads and pens, because there'll be many things you will be writing. And that will help you in your written communication skills in coming times. So let us begin with how to write good English. In today's era, when you receive any script from anybody, my question to the audience is, why will you read and when will you read? आप इस script को क्यों पढ़ोगे? What do you require for motivation to read? I'm waiting for your answers. Now here there is a question which I asked you. In today's era, what a reader wants, and you all gave many different answers, and they all are correct. But do you agree with this answer also? In today's era, if you receive a script which runs into 2, 3, 4 pages, will you be inspired to read it? Or if you have the same script in half page or 3/4 of page, will you be tempted to read?
Do you all agree with me that in today's era, this is the most critical requirement which every reader wants? What are your views? I will look forward to your answer in chat. Do you all agree? How can we give maximum information in minimum reading time? Now I am going to share with you the skill, how to achieve this. There are 3 principles. I will show you those 3 principles in the slide. Kindly write down the entire slide, then I'll get started. What a reader wants maximum information in minimum reading time. And to achieve this, the principles are accuracy, brevity, and clarity. Now I will share with you one by one. The first word is accuracy. What do we understand by the word accuracy? Supposing I am reporting to Mukta madam, she's my boss. It's a virtual period. She gave me assignment. I completed that assignment and sent her back by email. She sincerely goes through my assignment. She finds in my assignment 4 things are correct and 3 things are wrong. Following the principle of accuracy, she writes me 3 simple sentences. It says, "Dear Mr. Ahuja, this is wrong, this is wrong, this is wrong. Please correct it and send it back to me." इससे छोटी चिट्ठी तो नहीं हो सकती. She has written just the facts. But I am a human being. You know what will be my response? मुक्ता मैडम का काम तो गलतियां ही निकालना है. जितनी मर्जी मेहनत कर लो, हमेशा गलतियां ही निकालती हैं. Will I have negative feelings for her or not? Is it true or not? क्या ये जिंदगी का सच है कि नहीं? अब इन्होंने प्रिंसिपल तो फॉलो कर लिया. यहां मैं अब आपके साथ एक स्किल करने जा रहा हूं. ध्यान से सुनना बेटा, सब के सब. बेटा, जब हम किसी भी परिस्थिति में जब नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है? लेट मी शेयर विद यू. आप सब लोगों ने 2 शब्द सुने हुए हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड से आपने कहा, ओह दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरा रिएक्शन है, इस मैडम का काम तो गलतियां निकालना ही है. आई विल हैव नेगेटिव फीलिंग फॉर अस. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल. Some of the participants who are doing BCom honors, hypothetically, let's say I am doing BCom honors. I appeared for my final result of BCom. When I saw the result, I have failed out of 4 in 3 subjects. The moment I see I have failed in 3 subjects, what is my response? I am a useless person. I am a brainless person. I think I was thinking I am very smart, and I thought Manju will take 5 attempts to clear BCom. She has cleared in first attempt with 60% marks. We keep on cursing ourselves. इसके consequences क्या होते हैं? जब subconscious mind से आप negative विचारों को लाते हो, तो आपका subconscious mind कुछ symptoms उत्पन्न करता है. कैसे? मैं आपको symptoms सुनाता हूँ. नींद ना आना, भूख ना लगना, किसी से बात करने का मन ना करना, अंधेरे में बैठना, और कुछ लोग इस गहराई में उतरते चले जाते हैं. दे थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड. इतना इफेक्ट होता है नेगेटिव थॉट्स का. अब ये तो हो गया इंडिविजुअल का. अब मैं पब्लिक का बताता हूं. मान लो मेरा रिजल्ट आया, मैं घर गया, पिताजी ने पूछा, हाँ भाई बेटा क्या हुआ? मैंने कहा पापा फेल हो गया हूं. कहते फेल तो तूने होना ही था, हमें पता था, तुझे कभी पढ़ते देखा ही नहीं. सारा दिन नेटफ्लिक्स के आगे बैठा रहता है, या मैच देखता रहता है, या लफंगपना करता है. तो हमें पब्लिक से भी फीडबैक नेगेटिव मिलेगी.
क्या ये बातें सच हैं? I want your response on chat. Do you agree with me? Does it really happen in our life? This is the effect of negative thoughts. अब मान लो बेटा, अब सारे मेरी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी गुड रिस्पॉन्स. अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो बेटा. मान लो हम नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें. एग्जाम्पल देता हूं. I have failed is negative. I have not passed is positive. जैसे आप अपने आप को कहोगे I have not passed, आपके अंदर एक नया प्रश्न जन्म लेगा. अब कैसे पास होगे, क्या करोगे, कौन कौन सी तैयारी करोगे. So all your chain of thoughts will be positive. अब मैं आपको पब्लिक रिस्पॉन्स बताता हूं. मैं घर गया, पिताजी ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ. मैंने कहा पापा पास नहीं हुआ. बीकॉम छोड़ दूं, मैं कोई और कोर्स कर ले. कहते हैं ना 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 ना, डोंट डू दैट. यू आर इंटेलिजेंट, वर्क हार्ड, you will be able to clear your exam with very good marks. Don't give up. पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं? तो ये दुनिया है बेटा. चाहे आप खुद हो या दुनिया हो, नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपको हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. अब आप कहोगे सर, हाउ इट इज पॉसिबल दैट इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन वी शुड यूज पॉजिटिव वर्ड्स. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं. आई हैव फेल्ड, I have not passed. I am late. Oh, I wish I was on time. I am ugly. I wish I was handsome. He died. He lived for eternal journey. She hates me. I wish she loved me. आप मुझे कोई नेगेटिव शब्द दे दो, मैं आपको स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव शब्द दूं. तो सारे मेरी एक बात मान लो बेटा, हमारी लाइफ में रोज नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी. हर नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव शब्दों का प्रयोग कभी मत करना. हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना. और जब आप पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, दुनिया से भी और अपने आप से भी. मानसिक शांति मिलेगी. क्योंकि बेटा देयर इज नथिंग, सपोजिंग ये 24 घंटे का दिन है, रात आती नहीं, विल यू बी कंफर्टेबल? नो. पार्टिसिपेंट्स प्लीज रीड दिस, इट इज वर्थ रीडिंग. टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 1 मिनट. अब दूसरी स्क्रिप्ट सारे पढ़ो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं. पहले ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो. Always think, speak or write in positive language for every proven negative situation. ये लाइफ का मंत्र है. हर परिस्थिति को कैसे संभाला जाए और विदाउट गेटिंग मेंटली डिस्टर्ब्ड. प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखो या पर्सनल स्क्रिप्ट लिखो, हर परिस्थिति में पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करो. अब मैं आपको जल्दी से बाकी 2 शब्द बता दूं. दूसरा प्रिंसिपल है ब्रेविटी. ब्रेविटी जैसे आप सब लोग मैसेजेस भेजते हो, YOU की बजाय सिर्फ यू लिखते हो, बट हम पर्सनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में इतनी ब्रेविटी यूज नहीं कर सकते. पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं. मान लो डॉक्टर मंजू गोयल ने मुझे कहा, आहूजा टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड. तो मैंने बोलना शुरू किया. आई पास्ड माय 10th with 64% मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आई पास्ड माय 12th with 92% मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आई पास्ड माय बीकॉम. मैंने 10 सेंटेंस बोले. इंस्टेड मैंने मैडम को उत्तर दिया एक सेंटेंस में, मैडम ड्यूरिंग माय एकेडमिक कैरियर I cleared all my exams in one go and meritoriously.
मैंने एक सेंटेंस में सब कुछ कह दिया कि नहीं कह दिया? इसको ब्रेविटी कहते हैं। और इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? वेरी गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग। अगर आपकी वोकैबुलरी रिच है तो आप बड़े कम शब्दों में बहुत बातें कह सकते हो। और तीसरा प्रिंसिपल आपने कहा क्लैरिटी। बेटा, इंग्लिश भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। जैसे एक बड़ा कॉमन शब्द है फास्ट। अगर आप क्रिकेट फील्ड में बैठे हो तो आप कह सकते हो द पिच इज वेरी फास्ट। आप एक स्टोर से बड़ी अट्रैक्टिव रेड शर्ट खरीद रहे हो और आपने सेल्स पर्सन से पूछा, भाई इसका रंग तो नहीं निकलेगा? He says, no, no, sir, the color is very fast. और बाई चांस आप उदय शंकर जी को मंगलवार मिल गए और आप कहते, उदय जी चलो खाना खाएं। कहते, प्रभु मैं आपके साथ खाना अवश्य खाता, बट टुडे इज ट्यूसडे, आई एम ऑन फास्ट। अब देखो, 3 जगह पे सेम शब्द का अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? ऐसे शब्दों का प्रयोग अवॉइड करो। दिस कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग। अब आ जाओ तीसरा प्रिंसिपल। हम में से कुछ लोग अनजाने में एक पैराग्राफ लिखते हैं 5 लाइनों का और एक फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा डैश लगाते जाते हैं। पर लेट मी शेयर विद यू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रीडिंग। हम जानते नहीं, हम जब भी कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, मन में भी हम पढ़ते चले जाते हैं जब तक फुल स्टॉप नहीं आता। मान लो एक फुल स्टॉप 5 लाइनों के बाद है और हम 5 लाइनें एक सांस में नहीं पढ़ सकते, और जैसे हमारा सांस टूटेगा हम स्क्रिप्ट छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हो रिसीवर आपकी स्क्रिप्ट पढ़े, जितने छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखोगे, जितनी सिंपल इंग्लिश लिखोगे और हर सेंटेंस में वर्ब डालोगे, उतनी स्क्रिप्ट अच्छी लिखोगे। अब ये 2 लाइनें हैं, सारे लिख लो, आपके काम आएंगी। These are the 3 basic principles of writing a good script and good English. अगर आप जितनी सीधी साधी सिंपल इंग्लिश लिखोगे या जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उतना पढ़ने वाले को आना है। अब मैं शुरू कर रहा हूं आप सब लोगों के साथ लेटर राइटिंग। यहां पे आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, बोलता जाऊं, लिखते जाना। बट पहले सारे एक स्टेटमेंट सुनो। आपकी पूरी जिंदगी में आप 2 प्रकार की चिट्ठियां लिखोगे। एक लेटर एड्रेस टू ए डेजिग्नेशन, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये डेजिग्नेशन है, इसके नियम अलग हैं। और एक चिट्ठी बेटा आप लिखोगे टू ए ह्यूमन बीइंग। मान ले आपने नाम ऊपर लिखा मिस्टर उदय शंकर, चीफ कंट्रोलर, विश्व युवा केंद्र, सो दिस बिकम्स ह्यूमन। अब इसके नियम अलग हैं। अब मैं आपको पहले एक स्लाइड दिखाऊंगा। इस स्लाइड में जो आपको नजर आ रहा है फटाफट लिख लो, ये बहुत जरूरी है और आपके काम आएगा। एड्रेस टू, करेक्ट ओपनिंग, इनकरेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सिर्फ ये हेडिंग्स लिख लो फटाफट। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा डेजिग्नेशन, इसके नियम क्या है। लेट अस से आपने ऊपर लिखा डायरेक्टर एचआर के डेजिग्नेशन हो गया, तो इसका जो उचित ओपनिंग होता है वो होता है डियर सर स्लैश मैडम। अगर आप डियर को रिप्लेस कर देते हो रिस्पेक्टेड सर, वो गलत है। रिस्पेक्टेड सर का प्रयोग केवल स्कूल और कॉलेज में होता है, प्रोफेशनली कभी नहीं होता। और अगर आप डियर को रिप्लेस करते हो विद ऑनरेबल सर,
ऑनरेबल सर भी केवल दो लोगों के लिए होता है, जुडिशरी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली अगर हम ऊपर लिखते हैं डायरेक्टर HR, क्लोजिंग में हम लिखते हैं विद रिगार्ड्स योर्स सिंसियरली, दोनों गलत। द करेक्ट क्लोजिंग इज योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली। गवर्नमेंट ऑफिसेज में फेथफुली लिखा जाता है, कॉर्पोरेट वर्ड में ट्रूली लिखा जाता है, सिंसियरली कभी नहीं लिखा जाता। अब साथ साथ बेटा अपने नोट्स बनाते जाना। लेट अस से मैंने ऊपर लिखा मिस्टर उदय शंकर, चीफ कंट्रोलर, विश्व युवा केंद्र। आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर माई जॉब इन विश्व युवा केंद्र, आई एम द जूनियर मोस्ट। फिर भी मैं ओपनिंग में क्या लिखूंगा, डियर मिस्टर शंकर, ये करेक्ट है। डियर मिस्टर उदय शंकर गलत, रिस्पेक्टेड मिस्टर उदय शंकर गलत, रिस्पेक्टेड मिस्टर उदय गलत, ऑनरेबल मिस्टर शंकर गलत। और अगर आप लिखते हो डियर सर स्लैश मैडम, वो भी गलत। Regardless of the position of the person to whom you are writing, male or female, either you write Miss or you write Mr. and the surname, not the first name. और closing में हमेशा आता है yours sincere. That means sincerely is meant only for human beings and not for designations. अब जल्दी से लिख लो, फिर एक 5 शब्द है मैं आपको बताऊंगा जो क्लोजिंग से पहले यहां लिखे जाते हैं, उनका मीनिंग क्या है, कब और कहां लिखे जाते हैं। चलो मैं वो भी दिखा देता हूं, एक दफा सारे लिख लो फिर एक्सप्लेन करूंगा। विद बेस्ट विशेस, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, विद रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स एंड वार्म रिगार्ड्स। ये 5 शब्द हैं, पांचों के रूल्स अलग हैं। एक दफा लिख लो, show me thumbs up, then I'll start explaining. All of you are through? Wonderful. अब बेटा मैं धीरे धीरे एक शब्द बताऊंगा, फिर डिक्टेट करूंगा, साथ साथ प्लीज लिखते जाना। पहला शब्द है विद बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस केवल 3 लोगों को लिखा जाता है, लिखो। Best wishes dash, first person is colleague, second is subordinate, third is friend. इन 3 लोगों को जब आप चिट्ठी लिखते हो तो क्लोजिंग में लिखते हो with best wishes. अब आ जाओ दूसरा शब्द जो हम रिचुअली लिखते हैं, वो है thanking you. That is wrong. क्योंकि जब आप थैंकिंग यू लिखते हो, ना लिखने वाले को पता है ना पढ़ने वाले को पता है कि किस चीज का धन्यवाद किया जा रहा है। मान लो मैंने मैडम मुक्ता भारद्वाज को चिट्ठी लिखी, प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय मार्च 20th, तो मैं क्लोजिंग में लिखूंगा थैंक्स इन एंटिसिपेशन for sending me the above information by March 20th. अब मुझे भी पता है मैं इनका धन्यवाद क्यों कर रहा हूं, और जब ये चिट्ठी पढ़ेंगी इन्हें भी पता है मेरा धन्यवाद क्यों किया गया। अगर आप केवल थैंक्स या थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते हो, both are not correct. Both are grammatically wrong. अब आ जाओ बेटा, इंग्लिश के 3 शब्द हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। एक शब्द है विद रिगार्ड्स, दूसरा शब्द है विद बेस्ट रिगार्ड्स, और तीसरा शब्द है विद वार्म रिगार्ड्स। अब मैं आपको 1 by 1 एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने उदय शंकर, चीफ कंट्रोलर, विश्व युवा केंद्र को एप्लीकेशन भेजी, ऊपर मैंने इनका नाम लिखा। ना ये मुझे जानते हैं ना मैं इनको जानता, क्योंकि मैंने इनका नाम लिखा है तो मैं नीचे लिखूंगा विद रिगार्ड्स योर्स सिंसियरली। अब विद रिगार्ड्स के सामने डैश करके लिखो 2 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर सीनियर, कॉमा,
नॉट नोन, आप जानते नहीं हो, तो सिंसियरली से पहले लिखोगे विद रिगार्ड्स। अब मान लो मैं उदय शंकर जी के यहाँ, मैंने इनके अंडर 5 साल काम किया, अब मैंने जॉब चेंज कर लिया है, अब मैं एक और जगह नौकरी करता हूं। मैं उदय शंकर जी से परिचित हूं, ये मेरे से परिचित हैं, और मेरे मन में इनके लिए इज्जत है। तो मैं जब इनको चिट्ठी लिखूंगा डियर मिस्टर शंकर, तो नीचे लिखूंगा विद बेस्ट रिगार्ड्स। बेस्ट रिगार्ड्स के लिखो पैरामीटर सीनियर, कॉमा नोन, कॉमा हैव रिस्पेक्ट। जब ये 3 चीजें हो फिर लिखा जाता है विद बेस्ट रिगार्ड्स। अब आ जाओ विद वार्म रिगार्ड्स। वार्म रिगार्ड्स कहां लिखा जाता है? मान लो जब मैं उदय शंकर जी के यहाँ काम कर रहा था 5 साल, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आई, इन्होंने हर कदम पे मेरे को मदद की, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की, तो मेरे मन में इनके लिए श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? सो आई हैव रिस्पेक्ट एज वेल एज फीलिंग्स फॉर हिम। तो इनको अब मैं चिट्ठी लिखूंगा विद वार्म रिगार्ड्स। विद वार्म रिगार्ड्स के 4 पैरामीटर्स हैं, सीनियर, नोन, हैव रिस्पेक्ट एंड फीलिंग्स। जब ये 4 पैरामीटर्स हो फिर आपको लिखना चाहिए विद वार्म रिगार्ड्स। My young friends, all of you are clear now which is the correct terminology to use where. Now this was letter writing. Ab, these principles of letter writing will be followed. Now I'll share with you in a quick way. If you are writing a professional letter, these principles will be followed, but there are one additional principle. I'll show you this slide. Please write down. When you're writing a business letter or a professional letter has 4 parts: opening, salutation, body and closing. अगर आप business letter को इन 4 टुकड़ों में तोड़ देते हो, it is easy to draft, it is easy for the receiver to read, and you can draft it very well. अब इसके notes नहीं, मैं आपके साथ slide share करूंगा. All the participants can take a screenshot and keep it with you. I'll explain you through a slide. Your personal details, company details, and date. These 3 things are called opening. Then subject, reference, and dear Mr. Agarwal. These 3 things are called salutation. और जहां पे मेरा कर्सर है बेटा, जहां आप मेन चिट्ठी लिखते हो, इसको कहते हैं बॉडी. With regards, your sincerely को कहते हैं closing. Now you all are clear? बेटा इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव कर लो. लेकिन जो पिछली स्लाइड में मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं वो अवश्य फॉलो करना. They are important and must be implemented. With this, we conclude written communication. तो बेटा जो जो आज आपने सीखा है, इसको प्लीज इम्प्लीमेंट अवश्य करना. जब आप लाइफ में किसी को भी चिट्ठी भेजते हो, you are putting your entire personality into that letter. And if your letter is grammatically correct, you will be respected. Correct? अब बेटा मैं शुरू कर रहा हूं. How to become one of the best communicator. To be an effective communicator, one has to strike a balance between 3 things: verbal, non-verbal. बेटा मैंने लास्ट सेशन में कहा था, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर मेड फॉर ईच अदर.
आज कहूंगा वर्बल एंड नॉन वर्बल आर ऑल्सो मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि जब आप वर्बल बोलते हो, नॉन वर्बल हमारी कम्युनिकेशन शुरू होती है जब हमारी पलकें खुलती हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बंद होती है जब आप सो जाते हो। तो ड्यूरिंग द डे बोथ ऑफ देम गो वन अलोंग द अदर, दोनों अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। और तीसरा है जब आपकी कलम चलती है और किसी और के पास पहुंचती है, जो मैंने अभी किया है। तो बेटा एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, जैसा आप लोगों ने कहा, मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहता हूं, जब आप किसी भी विषय पे बोलते हो, you must have in-depth knowledge of that subject. और जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, you can learn something new till the last day on this earth, and knowledge leads to confidence. और अपनी नॉलेज जब हमने वर्बली दूसरे के साथ शेयर करनी है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? कमांड ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज सुधारने का मैंने आपको, आज मैं फिर आपसे बातें करूंगा बेटा, दो रास्ते हैं। हम में से बहुत लोग एक छोटी सी गलती करते हैं, हम सोचते हैं हिंदी में, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर इंग्लिश में बोलते हैं, और हम अक्सर गलत इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश का व्याकरण दो अलग व्याकरण हैं। तो मेरा आप सबको सजेशन है, make your vocabulary very rich in both the languages. If you are speaking in English, think in English. And if you are speaking in Hindi, think in Hindi, or whatever your original language is. वही फाइल खोलो, फिर आप बड़े सरलता से अपने विचारों को शब्दों का चोगा पहना के अपने मन की बात दूसरों को सुना पाओगे। So this is what is this command of language. और ये भी आप कभी नहीं कह पाओगे कि मेरे पास पूरी कमांड है। तो ये था पहला। अब अगली चीज, ये भी आप सबने सुना था, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर मेड फॉर ईच अदर। और फिर यहां पे जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी, यू विल एग्री, speaking is not what we say, but speaking is how we say. अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी को सुन रहे होते हैं, कभी तो हमारे मन में इच्छा होती है, यार इसकी बातें सुनते रहो, इसकी आवाज इतनी मधुर है, इसका बताने का तरीका इतना अच्छा है, आनंद आ रहा है इसको सुनने में। तो टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, यू मस्ट लर्न द आर्ट। अब मैं आपको एज ए प्रोफेशनल छोटी छोटी बातें बता देता हूं। फर्स्ट इज कमांड ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, थर्ड इज कंट्रोल योर स्पीड। हम में से बहुत लोग, जो मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था, ड्यूरिंग आवर स्टूडेंट लाइफ हम घर से लेसन याद करके आते थे, और जब स्कूल में मैडम पूछती थी, हम इतनी तेज बोलते थे कि कहीं भूल ना जाए, तो हमें आदत पड़ गई तेज बोलने की। अब हम बड़े हो गए हैं, बट दैट स्पीड हैज नॉट गॉन डाउन। और जब हम इतनी स्पीड से बातें करते हैं, तो आधी बातें औरों को समझ नहीं आती। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूं। एज ए स्पीकर, मैक्सिमम यू कैन स्पीक 120 वर्ड्स इन अ मिनट। आपकी स्पीड इससे ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। और जब आप धीरे कब बोल सकोगे? जब आपके पास नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक तीसरी चीज की आवश्यकता है, और वो है रिहर्सल्स।
बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी किसी भी फील्ड में रिहर्सल इज अ मस्ट। कल को आपने कहीं कोई प्रोग्राम देना है तो 1 या 2 दफा घर पे रिहर्सल अवश्य करना। अगर मैं कहूं कि मुझे 58 साल हो गए हैं ऐसे प्रोग्राम करते हुए, फिर भी मान लो जो आज प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूं, क्या मैंने इसकी रिहर्सल की 4 दफा, स्क्रिप्ट बनाई, रीस्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट बनाई, ऐड करता गया, जब तक मन को शांति नहीं हुई कि हाँ इसमें कुछ और डालना चाहिए। चलो अब बताता हूं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था a speaker can speak 120 words in a minute. Your brain can interpret 400 words in a minute. So there is a gap. और मैंने आपके साथ 2 शब्द किए थे, हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हम स्विच कर जाते हैं लिसनिंग से हियरिंग। हम केवल 25% लिसनिंग करते हैं और 75% हियरिंग करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस आप सबको याद है, सिर्फ शब्द पढ़वा दूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और यहां मैंने आपको एक सजेशन दिया था, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। आज के बाद जब कभी प्रोफेशनली किसी के पास जाना, अपने सीनियर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। ऑलवेज कैरी ए स्क्रिबलिंग पैड एंड पेन। Whatever instructions your senior gives you, write the instructions in front of him. और मुझे याद है, अगर नहीं लिखा तो आज फिर लिखवाता हूं, उनके कैबिन को छोड़ने से पहले एक सेंटेंस अवश्य बोलना, सर, हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? दिस इज व्हाट यू वांट मी टू डू, 1 2 3 4। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई होगी तो यहां करेक्शन हो जाए। फिर जब तुम लोग मेहनत करके आओगे, तुम्हारे काम को हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा। You will do a very good job. You will save lot of time and you will always stay motivated. ये सेंटेंस याद रख लेना, have I understood you correctly, and reconfirm जो आपने लिखा है। क्योंकि जब आप किसी की बात बड़े ध्यान से सुनते हो तो उसके बेनिफिट्स ये हैं जो मैंने आपको बताए थे, सिर्फ पढ़वा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बेटा, इस धरती पे उस दिन भी मैंने कहा था, अगर कोई एक्यूट शॉर्टेज है वो है सुनने वालों की। 99.9% ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। और अगर आप एक क्वालिटी ऑब्जर्व बना लो अपनी कि मैं सबकी बात सुनूंगा, you will be in great demand to be a very good listener, to become a very good communicator. सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। जब हम किसी की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं तो हमारे शरीर में 5 चेंजेस होते हैं। देखिए, अगर आप केवल इस चित्र को देखेंगे, 3 तो आपको यहीं मिल जाएंगे। Is she smiling? Is she maintaining eye contact? Is she leaning forward? तो ये 3 पहले शब्द हैं, लीनिंग फॉरवर्ड। हम डिस्टेंस अपने और स्पीकर के बीच में कम कर देते हैं। हमारे चेहरे पे अननोइंगली मुस्कुराहट आ जाती है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, नॉडिंग, ये थोड़ा मुश्किल था। मोनोसाइलेबल्स, जी, हाँ, ठीक है, करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप दूसरे की बात सुनते हो और आपका शरीर ये 5 भाषाएं बोल रहा है, तो सुनने वाले के मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है कि इसने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी।
So these are the non-verbal 5 signs of listening. अब एक और चीज जो हमने की थी कि जैसे मैंने कहा शुरुआत में, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर मेड फॉर ईच अदर। अब इस होराइजन को बड़ा कर दो। verbal communication and non-verbal communication are also made for each other. वो कैसे? अगर जो आप कह रहे हो और जो आपका शरीर कह रहा है दोनों मैच करते हैं तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाएगी। पर जो आप जीभा से कह रहे हो और जो आपका शरीर कह रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन गलत हो जाएगी। इसलिए either you can make a great impression or you can ruin the impression. Depends whether they are collaborating with each other or not. अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं। ये एक और बड़ी मजेदार चीज है। आपकी भाषा एक्सप्रेस करती है जिस तरह आप बोल रहे हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स। और आप जब हाथ पांव हिलाते हो, दैट कन्वेज योर एक्शंस। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ये चित्र बहुत कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा? बिना बोले ये एक फोटोग्राफ है, but we can do lot of interpretations from this photograph. Similarly, we can do lot of interpretations from this photograph. That means non-verbally, we communicate so many things. क्या आप ऑनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, नर्वस हैं, अटेंटिव हैं, बोर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं बातें सुन के। So this is how your non-verbal communication conveys messages to the listener. Sorry, to the speaker, whether you are in what situation, what frame of mind. अब आ जाओ नेगेटिव। अब ये सिर्फ चित्र देखते रहो। Point, if you are pointing your finger towards the other person, you are aggressive. You are leaning too close or you are grinding your teeth. जब आप झूठ बोलते हो तो ये सारे सिम्टम्स हैं, उस दिन मैंने आपको बताए थे। और जब आप बोर हो रहे होते हो, ये देखो, ये चित्र अपनी आप कह रहा है। हम में से कुछ लोगों की एक टांग चलती है जो टैप करती है कॉन्स्टेंटली। Tapping foot is also called that you are bored. So these are all symptoms of negative body postures. This is rejection. तो बेटा make sure, ये मैंने रिवाइज क्यों किए? जब आप किसी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखो। If you want to be a very good communicator, listening is part of communication. And it is the more important part of communication. यहां तक कहावत है, कई दफा बिन कहे चुप रह के भी आप अपने मन की बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हो, वो भी तो कम्युनिकेशन है। और कई दफा बोल के भी आपके मन की व्यथा नहीं बता पाते। So listening is again a great part. सर, मेरा अगला सवाल है, मतलब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जो अगला सवाल है कि हम किस तरीके से वी कैन बी बिकम अ वेरी गुड लिसनर, बिकॉज ऑलवेज वी हर्ड दैट वी शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, और कई बार प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि हम वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं लाइफ में, वो मेथड कि हम किस तरीके से सामने वाले को सुनते रहें और उसमें अपना कुछ विचार जो है कि ना दें और कंट्रोल करें अपने आप को। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, उसका पहला रीजन तो ये सीख लो जो आपके यंग पार्टिसिपेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। इसको कहते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड
and how to handle conflict. एक शब्द है conflict, आपके विचार और मेरे विचार. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक जीडी चल रही है, जनरल डिस्कशन चल रहा है, आप एक मीटिंग में हो, आपने एक विषय में कुछ अपने विचार प्रकट करने शुरू किए और मैं सुन रहा हूं. आई डोंट एग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग. तो मेरे सामने दो रास्ते हैं. मैं बीच में ही आपको टोक देता हूं, नहीं नहीं मैडम, व्हाट यू आर सेइंग इज बुलशिट, आई डोंट एग्री विद यू. एक सिचुएशन तो ये हो गई, वी हैव इंक्रीज्ड द कॉन्फ्लिक्ट, आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स. दूसरा जिंदगी का नियम है, ये याद रख लो, इस धरती पे कोई भी गलत नहीं है. कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. सेंटर में टेबल पे 6 लिखा हुआ है, एक साइड पे आप बैठे हो, एक साइड पे मैं. मुझे 6 दिखाई दे रहा, आपको 9 दिखाई दे रहा, और आप 9 के विषय में बोलते जा रही हो. मैं कह रहा हूं देख, इसको दिखाई नहीं देता, 6 भी नहीं दिखाई देता, ये क्या कह रही है. तो आई रिएक्ट, विच इज रॉन्ग. तो कन्फ्लिक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड या प्राइवेट वर्ल्ड या पर्सनल लाइफ में कैसे हैंडल करना चाहिए. जब आप दूसरे की विचारधारा सुनते हो, पहली बात, जब आप दूसरे की विचारधारा सुनोगे शायद कुछ नया सीख जाओ. दूसरा, सुनो, आपको अधिकार है अपने विचार प्रकट करने का. अब मैं आपको कॉर्पोरेट ट्रिक बता रहा हूं. ट्रिक क्या है, प्रोफेशनल तरीका. आई सेड, मैडम व्हाट यू सेड, देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू इनटू इट. आई रिस्पेक्ट योर feelings and expression, but I beg to differ. Can I share my thoughts? आपका क्या अच्छा, आप बताओ, आपकी भी सुन लेते हैं. तो दोनों अपने विचार आमने सामने प्रदान कर सकती हैं. This is how they say how to handle conflict. ये आपके विचार हैं, ये मेरे विचार हैं, ये अब हमारे विचार हैं. So we can't come to an agreement to which both of us are agreeable. सुनने में सुख. अच्छा चलो, मेरे को एक और बात याद आ गई जो आप सबके लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है. हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कई दफा आते हैं, चाचा 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 एक जोक सुनाऊं, सुना. जैसे वो जोक सुनाने शुरू करना, वो इतना पुराना घिसा पिटा होता है, वो चुप कर यार, 100 दफा सुना हुआ है, हम उसको स्नब कर देते हैं. ये एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे सिखाया था आज से 20 साल पहले. कहता है जब आप इस तरह बच्चे को स्नब कर देते हो, तो जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट, तो वो ऑडियंस के सामने कभी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे स्नब कर दिया गया था. तो कहते हैं अगर तुम चाहते हो ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा ओरेटर बने, चाहे वो आपने जोक 100 दफा सुना हुआ है, बड़े ध्यान से सुनो, तालियां बजाओ, एप्रिशिएट करो. यू आर क्रिएटिंग ए फ्यूचर स्पीकर. तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, हम सबके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं. जब वो आके अपनी बातें सुनाएं, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों ना हो, बड़ी तन्मन्यता से सुनना और उसे एप्रिशिएट करना. यू आर क्रिएटिंग फ्यूचर स्पीकर्स. थैंक यू सो मच. ये सुनने का एक और फायदा है. So another question is, sir, like you have beautifully covered that how we can control the speed while talking, while speaking, but how we can control the loudness in our voice, because जिस तरीके का सिनेरियो है, जिस तरीके का वर्क कल्चर है, जिस तरीके से मतलब इस टाइम पे जो है कि जो भी मतलब डे टू डे लाइफ में पीपल आर हैविंग मूड स्विंग्स, और बहुत तरीके से जो है कि कभी कभी वो फैमिली पे भी निकल जाता है. तो मेनी आर टाइम्स पीपल ट्राई टू कंट्रोल, मतलब कि वो सॉफ्टली जो है कि बोले, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं आ पाती हैं. कहीं ना कहीं लाउडनेस वॉइस में हमेशा रहता है. तो हाउ टू कंट्रोल दैट लाउडनेस? ऐसा है, कोई भी कला बिना तपस्या के नहीं आती. अब मैं, जैसा मैंने कहा, मुझे बोलते हुए अब 58 साल हो गए हैं. क्या मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूं धीरे बोलने की? उत्तर है हाँ. Every time you are making conscious effort, how can I speak slowly, more effectively, so that लोगों को लोरी भी ना लगे और वो सो जाए, और लोगों को समझ भी ना आए इतनी तेज हो. It should be maintaining a speed. और दूसरा क्या होता है, जो आपने कभी सजेशन दिया, कभी कभी मान लो मेरी बहन ने कोई एक ऐसी बात कह दी
और हम इंस्टेंटली चिल्लाने लग जाते हैं, वी लूज आवर कूल, और बड़ी कड़वी बातें कह जाते हैं, और जब कड़वी बातें कह जाते हैं बाद में बड़ा पछताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शो योर मैग्नेविटी, गो बैक टू योर सिस्टर, नो योर कूल्ड ऑफ, and tell her my apologies, heat of the moment I have said this, I don't intend to mean them, please forgive me। जो दुख हमने दे दिया वो तो रहेगा, थोड़ी सी मलहम तो लगा दी, थोड़ी सी मन को शांति तो होगी कि भाई को अपनी गलती समझ आ गई है। This is what is called have the courage of apologizing if you have committed a mistake। ये बड़े, फिर जब आप एक दो दफा करोगे फिर धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल आता है। Sir, many a times unknowingly non-verbal conversation went wrong because of high voice pitch or facial expression. How one can improve on their non-verbal communication? उस वक्त होता है जब हमारा फेशियल एक्सप्रेशन तब चेंज होता है जब हम सुन रहे हैं और अपनी वैल्यूज दूसरे पे थोपना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सीइंग ए मूवी, we see some actors, they are doing a positive roles and some actors are doing a negative role, और जो लोग नेगेटिव रोल कर रहे हैं तो वो भी एक्टर, पर हमारे मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाती है, खराब आती है, ये बकवास करेगा, इसने इसका नुकसान ही तो करना है। We build up negativity against them, these are inbuilt emotions। पर हम ये भूल जाते हैं वो भी तो भाई एक एक्टर है, वो अपना रोल कर रहा है, ये भी एक एक्टर है, ये अपना रोल कर रहा है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, गलत दोनों नहीं है। So let us get into the habit of controlling ourselves in internal emotions। This is the only way we have to understand। मान लो मैंने आपको कोई बात कह दी, मतलब लगे सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले मेरा और पत्नी का झगड़ा हो गया और मैं वैसे भी झल्लाया हुआ हूं, तो क्या मैं आपसे मीठी बातें करूंगा? कभी नहीं करूंगा। तो गिव ए चांस टू द अदर पर्सन, मे बी दैट पर्सन इज स्पीकिंग हार्श टू मी बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्सनल रीजंस, नॉर्मली ये ऐसा नहीं बोलता, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। बट हर घड़ी नई चीज सीखो, इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ जाओ। ये जिंदगी बहुत छोटी है, एक जिंदगी में सब कुछ नहीं सीख पाओगे, बट कीप ऑन इंप्रूविंग in every situation। सबसे पहले मैं सुरेंद्र आहूजा सर को अपना नमस्कार करता हूं। सर, आपने इतने अच्छे से तरीके से सेशन को लीड किया और खासकर से जो लर्निंग थी आप हम लोगों को आपने बताया कि किस तरीके से हमें लिसनिंग और समराइजिंग स्किल को डेवलप करना है। उसके लिए हम आपका सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ मैं आदित्य कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ममता शर्मा जी का और डॉक्टर सुनीता मैम का, डॉक्टर मंजू गोयल जी का, मनीषा पाल जी का और राकेश चौधरी जी का, और साथ ही साथ मैं विश्व सेवा केंद्र के चीफ कंट्रोलर श्री उदय शंकर जी का, अजीत सर का और पूरे बीवाई के टीम का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे हम लोगों को कम्युनिकेशन के लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ अवसर प्रोवाइड किए। उसके लिए एक बार सभी को पुनः मेरे तरफ से दिल से हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.